Students of Acharya Club will deliver a group speech in English. So I request Meena Bhagni ji, Sonali Bhagni ji, Srijan Bhrata ji, Lakshya Bhrata ji, Lokendra Bhrata ji, Medhans Bhrata ji, and Hidran Bhrata ji to come on the stage and mark the day. My humblest pranam to Param Puja Swamiji and Shraddha Acharya Shri, Honorable Chief Guest of the Day, distinguished guest for the occasion, Honorable Director Sir, Revered Vice Principal Sir, for the teachers, parents and all my dear friends. I wish you all a very happy Independence Day. As you know, we all have gathered here to celebrate 69th Independence Day of our nation. This day, after hosting the national flag, we salute and remember the heroic deeds of our freedom fighters. As the citizen of India, we feel proud to give speech on Independence Day and share some of our views with you all. On the night of August 14, 1947, Pandit Jawaharlal Nehru rose to make a speech on Independence Day in New Delhi. He said, when the world sleeps, India will wake to life and freedom. India become free from British rule. Independence Day means a day when we get freedom from not only our brute rulers, but also freedom from wants of fulfillment of right needs and humiliation. It means we have got our own identity and our own selves. What is the significance of 15th August in India? The Republic of India gained its independence from the British rule on 15th August 1947. Since then, this date of 15th August is celebrated as Independence Day to commemorate its freedom from 200-year-old British government. For India, 15th August is a day of a rebirth, a new start. At the midnight of 15th August 1947, the British rulers handed back our country to the Indian leaders, ending a remarkable struggle that lasted years. It was 15th August 1947, a historic day on which sovereign India's first Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru unfolded tricolor of the nation on the glorious Red Fort. This day is significant in the history of India, bringing an end of British colonial rule from India. This is the day when we remember the great leaders who gave in their life for nation freedom and prosperity. Dr. Bhimrao Ambedkar gave the longest written constitution to us. Pandit Jawaharlal Nehru worked for an industrialized India. Subhash Chandra Bose inducted courage in us. Swami Vivekananda gave us spiritual power. Gandhi taught us ahimsa and non-violence. But it is not good to remember the heroic deeds of only few main leaders of freedom fight, because freedom fighting was a collective effort. Without the cooperation, sacrifice and involvement of all Indians, it was impossible to get freedom. So the people of India were real national heroes behind the success. We should express our sincere gratitude to all those who participated in the great freedom struggle. This can only be done by defending our freedom like our ancestral property, which cannot be valued. But the question arises, how to defend? We know that a single person cannot defend it. Again, group effort is essential. It is nothing but unity. But again, how to form this unity? We should always remember that only having patriotism can form this unity, irrespective of language, religion, tradition, caste and custom. So, having patriotism only can save the freedom of a nation. To keep faith in secularism, no compromise must be with patriotism. We should punish the forces that support terrorists, else one bad day we'll lose our freedom. There is no denying that the word independence brings back nostalgic memories to all those who love their Indian country. They are the moments of sheer magic when a nation held in bondage for centuries breaks free from the shackles of foreign rule and breathes in the winds of freedom. A country that suffered slavery is the very country that has been admired by many in the West. We need to be proud of that legacy. No less a person than Albert Einstein has said of India, we owe a lot to the Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discoveries could have been made. Mark Twain, who is known for his satirical comments, observed seriously that India is the cradle of human race, the birthplace of human speech, the mother of history, the grandmother of legend, and the great-grandmother of tradition. Such a great nation that was the fountain of wisdom is ours and ours only. But today, India is the largest democracy. It is true that there are many hurdles at present and some major failures on certain fronts. But the country is relentlessly surging ahead.
The progress may not always be dramatic, but it is sure and steady. Today we take a special pride in saluting our beloved tricolor. Let us recall with pride the great sacrifice of our freedom fighters whose undying love for India secured us our freedom. On this happy occasion, join me in saluting the hard work of all those brave citizens who have over these 69 years helped build a new India. Let us bow our head in memory of all those brave citizens and all those brave Jawans who have sacrificed their lives for the cause of unity, integrity and progress. 69 years ago, the people of India began a new journey as a free nation, inspired by the message and vision of Mahatma Gandhi. But Gandhiji's dream of free India would only be fully recognized when we will be able to banish poverty from our midst. As I stand here and look at the tricolor flying high majestically, I outline a new vision of a king India. An India that is united despite as much as diversity. An India that is not divided with caste, creed or gender. An India where every citizen live a life of dignity, self-respect, decency and hope. Where every citizen is proud to say, I am an Indian. This vision of India is a proud heritage from our national movement. Today is certainly a day to celebrate the success of our democracy. However, on this occasion, we should also introspect about what remains to be done. We would achieve independence in true sense only when we are able to banish the poverty, illiteracy, hunger and backwardness from our country. This would be possible by gaining from our failures and build on our successes. You are aware of that these days the global economy is passing through a difficult phase. The pace of economic growth has come down in all countries of the world. However, in all countries of the world, seen together, the European countries are estimated to grow at 0% this year. Our country, India, is also affected by these adverse external conditions. Well, at the end, we must take an oath that let's prepare ourselves to be well-educated citizens of tomorrow. We, the members of our Charikulam family, should take an oath that let's accomplish the goal set by Param Pujya Swamiji and Shraddheya Acharya Shri. Let's do our duty sincerely and do work hard to achieve the goals. Today our country requires youngsters with lot of knowledge and energy. Illiteracy is the first main enemy for our democratic nation. Let's get rid of illiteracy and take our India to bright and culminating future. To conclude, I would like to say, I am no bird, no net ensnares me. I am a free human being with an independent will. Jai Hind, Jai Bharat. It was a magnificent performance indeed. Thank you. अब आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतिम प्रस्तुति के रूप में वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारी आ रहे हैं। किस प्रकार से हमारे क्रांतिकारियों को प्रताड़ना दी जाती थी, एक एक्शन सॉन्ग के माध्यम से आप देख पाएंगे। वैदिक गुरुकुलम के सभी विद्यार्थी आएंगे, अपनी प्रस्तुति देंगे। देश नु चलो, देश नु चलो, मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। मातृभूमि ने हमें बुलाया है, अब जाना होगा। जंजीरों में कैद है वो, उसे छुड़ाना होगा। अब न सहेंगे हम गैरों की गुलामियां। देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो, देश न चलो। देश मांगता है कुर्बानियां, देश मांगता है कुर्बानियां।
प्रथम तो इस 69वें स्वाधीनता दिवस पर आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे ब्रह्मचारी भाइयों और ब्रह्मचारी बेटियों ने जो सुंदर प्रस्तुतियां दी, उन खूबसूरत प्रस्तुतियों के लिए सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे व्यक्तित्व के कई छोटे छोटे पहलू होते हैं और ये सारे अनुष्ठान, ये सारे कार्यक्रम हमारी व्यक्तित्व के उन छोटी छोटी इकाइयों को उभारने के लिए, हमारे भीतर के असीमित सामर्थ्य को जगाने के लिए कई प्रकार से ये प्रयास और पुरुषार्थ किया जाता है। आप सब कर रहे हैं। अब मैं यहां जो अष्टाध्यायी की परीक्षा हुई, इसमें से ऐसे प्रतिभागी जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे, उनको यहां आमंत्रित करना चाहता हूं। यद्यपि मैंने सब विद्यार्थियों के अंक देखे तो एक एक दो दो अंकों का अंतर था, एक अंक का भी अंतर था। अब एक अंक के अंतर से, 2 अंक के अंतर से ही प्रथम, द्वितीय और तृतीय का फैसला हुआ है। तो वो दूसरी जो मार्कशीट है वो भी आपको दे देंगे, जिससे कि जिनके थोड़े 1-2 नंबर कम आए वो निराश ना हो। तो पहली बात तो प्रथम तो उनके लिए तालियां जो 1-2 अंकों से पीछे रह गए, लेकिन पुरुषार्थ उन्होंने बहुत किया है। तो वो ये न माने कि उनका पुरुषार्थ कहीं कम है, लेकिन अब जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय आए हैं उनको अभी तो मैं केवल आशीर्वाद के लिए यहां पर आमंत्रित करूंगा, लेकिन बाद में उनको बड़ा पुरस्कार भी देंगे। तो सबसे पहले मैं प्रथमावृत्ति की जो प्रतियोगिता हुई प्रथम अपाद की, उसमें ब्रह्मचारी दीपक 97% मार्क लेकर के प्रथम उन्होंने स्थान प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियां ब्रह्मचारी दीपक के लिए। और इसमें 96 और 95 में दूसरे भी ब्रह्मचारी रहे हैं, लेकिन प्रथम स्थान ब्रह्मचारी दीपक ने प्राप्त किया। तो एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन ब्रह्मचारी दीपक, जो बहुत ही तेजस्वी हैं। ब्रह्मचारी ईशु, उन्होंने 94.6% द्वितीय स्थान पर। बहन श्रुति, इन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया 97.6% से। तो श्रुति को भी आमंत्रित करते हैं। बेटी श्रुति के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत ही विदुषी बेटी है हमारी, तेजस्विनी है और खूब आशीष है बेटी श्रुति को। जोरदार तालियां आप सबकी, बहुत बहुत अभिनंदन। ये तो थी प्रथमा वृत्ति के प्रथम पाद की परीक्षा में जिन्होंने इतिहास बनाया, जिन्होंने गौरव प्राप्त किया, जिन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया। अब धातु पाठ के जो हमारे प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता, उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं। धातु पाठ के प्रथम विजेता के रूप में ब्रह्मचारिणी बहन दिवेशा, बेटी दिवेशा के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बहुत ही तेजस्विनी बेटी है और पूरी एकाग्रता के साथ, पूरे धैर्य के साथ ये अष्टाध्यायी की परीक्षा, जिसमें अष्टाध्यायी के सूत्र बोलना, उसके पाद आदि को बताना, उसके नंबर तक को बता देना, बहुत कठिन परीक्षा थी। दिवेशा ने उसमें बहुत पुरुषार्थ किया। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटी दिवेशा को। तो दिवेशा के बाद में दूसरी बेटी, वो भी द्वितीय स्थान पर रही है, ब्रह्मचारी तीसरे स्थान पर चले गए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ब्रह्मचारिणी बहन हर्षिता, उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन हर्षिता के लिए। जब बेटियों के लिए ताली बजाई जा रही हैं तो ब्रह्मचारियों की तालियां खामोश सी हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा पुरुषार्थ कहीं न्यून तो नहीं रह गया है। तो ये बेटी हर्षिता, जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, ये भी बहुत ही तेजस्विनी बेटी है और बहुत पुरुषार्थ कर रही है। एक बार पुनः जोरदार अभिनंदन बेटी हर्षिता को, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। और
अब तीसरे स्थान पर धातु पाठ में है ब्रह्मचारी शशि रंजन जी। इनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। बड़े होनहार तेजस्वी ब्रह्मचारी हैं, बहुत ही ओजस्वी ब्रह्मचारी हैं। और ये भी परीक्षा बहुत टफ थी, क्योंकि इसमें भी बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स से प्रथम द्वितीय तृतीय रखे। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई शशि रंजन के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन। और ये धातु पाठ के मैंने प्रतिभागियों को आमंत्रित किया था। अब अष्टाध्यायी में बेटियां द्वितीय और तृतीय स्थान पर रह गई हैं। ब्रह्मचारी पारसमणि अष्टाध्यायी में प्रथम स्थान पर। बहुत ही तेजस्वी ब्रह्मचारी है पारसमणि। वैसे भी पारस कहते हैं कि जिसको भी छुए वो सोना हो जाता है, तो पारस के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। खुश हो बेटा, बहुत पुरुषार्थ करते हैं पूरी एकाग्रता के साथ, उसमें खोना पड़ता है, उसी को जीना पड़ता है। दूसरा स्थान प्राप्त किया बेटी रामनवमी ने। और बेटी रामनवमी के लिए भी सबकी ओर से, ये रामनवमी के दिन पैदा हुई थी जिस दिन मैंने संन्यास लिया था, तो हमारा और इसका बर्थडे साथ साथ ही आता है। बहुत बहुत आशीर्वाद है बेटी रामनवमी को, बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार तालियां बेटी रामनवमी के लिए, बहुत आशीष बेटा। और तृतीय स्थान प्राप्त किया अष्टाध्यायी में बेटी आराध्या ने। आराध्या के लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है, बहुत बहुत अभिनंदन है। ये प्रथमावृत्ति धातु पाठ और अब अष्टाध्यायी के विजेताओं को हमने आमंत्रित किया, और तृतीय स्थान द्वितीय स्थान बेटियों ने प्राप्त किया अष्टाध्यायी में। ये बहुत एकाग्रता वाला और एक बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, तो बेटी के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। आराध्या के लिए भी बहुत ही सात्विकता और पवित्रता के साथ। और अब ये तो पहले मैंने आमंत्रित किया था प्रथमावृत्ति प्रथम अध्याय, बड़ी परीक्षा थी, और इसमें मैंने देखा बड़ा कठिन होता है, ये सहज कार्य नहीं होता है। इसमें बहुत प्रखरता चाहिए। प्रथम अध्याय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया ब्रह्मचारी शुभम जी ने। जोरदार अभिनंदन ब्रह्मचारी शुभम का। बड़े ही हंसमुख, तेजस्वी और बहुत ही दिव्य व्यक्तित्व वाले हमारे ब्रह्मचारी है। जोरदार अभिनंदन है ब्रह्मचारी शुभम को, बहुत बहुत आशीष, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप अपने आप को अध्ययन में जब समाहित करते हैं तो भी आपकी प्रसन्नता, आपकी एकाग्रता, आपकी दिव्यता खंडित नहीं होनी चाहिए। और ब्रह्मचारी शुभम एक ऐसे ब्रह्मचारी हमारे जो उसी प्रसन्नता और एकाग्रता में समग्रता के साथ जीते। और इनका 1 या 2 मार्क्स का अंतर रहा था। द्वितीय स्थान प्राप्त किया ब्रह्मचारी स्मित ने। तो ये 1-2 स्थानों की कोई बात नहीं, दोनों का ही जोरदार अभिनंदन हो जाए, शुभम जी का भी और स्मित जी का भी। तो ब्रह्मचारी स्मित और ब्रह्मचारी शुभम दोनों ने ही घनघोर पुरुषार्थ किया है, तो इनके लिए तालियां भी उतनी ही घनघोर होनी चाहिए। बहुत बहुत आशीष बेटे स्मित को। ब्रह्मचारी ईशु जिसने प्रथमावृत्ति में भी द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और प्रथम वो पाद में और ये प्रथम अध्याय में भी ब्रह्मचारी ईशु ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके लिए पुनः अभिनंदन हरिओम जी के और ईशु के। तो जरा दोनों के लिए आप सबकी बहुत बहुत बधाइयां, हरिओम जी के लिए भी और ईशु जी के लिए भी। और हमारे हरिओम भी उतने ही एकाग्र, उतने ही प्रसन्न चित्त, उतने ही सहज स्थित प्रज्ञ। बहुत बहुत अभिनंदन ब्रह्मचारी हरिओम के लिए, दोबारा से बहुत बहुत आशीर्वाद। तो ये हमारे पिछली जो परीक्षा हुई थी उसके विजेता थे। मैंने इन लोगों के लिए विशेष पुरस्कार की व्यवस्था की हुई है, तो एक बार बहुत जल्दी ही हम इनको दोबारा से एक सामूहिक कार्यक्रम में आकर के इनको पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही हमारा पुरुषार्थ निरंतर जागृत रहे। और ये बात मैं आचार्य कुलम के इन बेटों के लिए और बेटियों से लेकर के वैदिक कन्या गुरुकुलम की बेटियों और ब्रह्मचारियों के लिए समान रूप से कहूंगा, पुरुषार्थ की बहुत महिमा है जीवन में। और
जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं, मैं उसको हर क्षेत्र में देखता हूं, अध्ययन में भी, अलग अलग प्रस्तुतियों में भी, कुछ पूरे खो जाते हैं, कुछ थोड़े थोड़े खोते हैं। नहीं, जो भी करना है उसमें पूरी तरह से खो करके, वही होकर के करना है। योग करें, ध्यान करें तो योग में पूरे खो गए, अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में पूरे खो गए, नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पूरे खो गए, गायन कर रहे हैं तो गायन में पूरे समाहित हो गए। बस अपने आप को बचा के नहीं रखना। मुझे पूरा विश्वास है आप सबके भीतर वो दिव्य व्यक्तित्व और नेतृत्व तैयार होगा, जिस पर मुझ सहित भारत की संपूर्ण ऋषि परंपरा को गौरव होगा, संपूर्ण भारतवासियों को गौरव होगा। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे